السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ایک نواب کی پر اسرار طلسماتی دنیا کی آپ بیتی، ایپیسوڈ نمبر 109۔ سرکار منور کے آدمیوں میں سے ایک بول پڑا، آپ ہمیں نہیں جانتے، ہم نے اس جاگیر کا نمک کھایا ہے اور ہماری پشتیں اسی جاگیر پر پلتی اور پھلتی پھولتی رہی ہیں۔ ہماری جانیں اور ہمارا مال اس جاگیر کے لیے ہے۔ کیا آپ ہمیں آگ میں کود جانے کو کہیں گے تو حکم دے کر دیکھیں۔ باقی آدمیوں نے بھی منور کو بولنے کی مہلت نہ دی اور مجھے یقین دلایا کہ وہ جانیں لڑا دیں گے اور اگر پکڑے گئے تو سارا الزام اپنے سر لے لیں گے۔ میں انہیں ساتھ لے کر چل پڑا۔ ہم وہاں جا رہے تھے جہاں ایک وسیع نشیبی جگہ تھی۔ ایوب اور اس کے ساتھیوں نے وہاں پہنچنا تھا۔ اس نشیبی جگہ میں سے راستہ بھی گزرتا تھا۔ ہم چلتے گئے اور میں ان آدمیوں کو سمجھاتا گیا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ تو میں انہیں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ راستے میں زبانی رہل سہل کراتا جا رہا تھا۔ میں اس علاقے سے واقف نہیں تھا۔ حمید اللہ خان اور ایوب نے جو نشانیاں مجھے بتائی تھی، میں ان کے مطابق اسی رخ پر جا رہا تھا۔ ان آدمیوں میں سے دو اس جگہ سے واقف تھے اور ان میں ایک آدمی ایسا تھا جو ایوب کو پہچانتا تھا، لیکن بہت اچھی طرح پہچانتا تھا، اور ان میں سے دو آدمی مرزے اور کوبے کو بھی پہچانتے تھے۔ ہم جب اس جگہ کے قریب پہنچے تو میں نے ان آدمیوں کو بٹھا دیا اور میں خود آگے گیا۔ چاندنی بڑی صاف تھی۔ نشیبی جگہ کی گھاٹی کے قریب پہنچ کر میں جھک کر آگے بڑھا۔ مجھے پورا یقین نہیں تھا کہ جو سکیم حمید اللہ اور نور اللہ نے مجھے بنا دی ہے وہ کامیاب ہوگی یا نہیں۔ مجرمانہ سکیمیں چانس پر کامیاب ہوتی ہیں اور خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے 3 سیاہ سائے کھڑے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ ایوب تھا اور اس کے ساتھ اس کے دونوں ساتھی مرزا اور کوبا تھے۔ حمید اللہ نے ایوب سے کہا تھا کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کو اس کے پاس لائے۔ حمید اللہ نے انہیں یہ کہنا تھا کہ وہ میرے پاؤں پکڑ کر مجھ سے معافی مانگے۔ اب وہ حمید اللہ اور نور اللہ سے مل کر آئے تھے۔ سکیم یہ تھی کہ ان تینوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ ایوب کو یقین تھا کہ میں اس کی بہن اس کے حوالے کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ میں نے تو آگے جانا ہی نہیں تھا۔ میں پیچھے ہٹا اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان کا شکار پہنچ گیا ہے، وہ نیچے چلے جائیں اور ایوب کو اچھی طرح پہچان کر وار کریں، غلطی سے کسی دوسرے کو نہ رگڑ دیں۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ گھاٹی اتر کر گپ شپ لگاتے جائیں اور ان کے قریب سے گزر جائیں۔ چند قدم آگے رک کر انہیں دبوچ لیں اور پھر وہ تمام کاروائی کریں جو میں نے انہیں بتائی تھی۔ وہ چل پڑے۔ میں اس نشیب کے کنارے پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ آدمی گھاٹی اتر گئے۔ وہ تینوں 40-50 گز دور کھڑے تھے۔ میرے 6 آدمی خوش گپیاں لگاتے جا رہے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے قریب سے گزرے۔ چند قدم آگے جا کر یک لخت پیچھے کو پلٹے اور انہوں نے ان تینوں کو دبوچ لیا۔ وہ سب درخت کے نیچے سے ہٹ کر سامنے آ گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایوب نے اپنے پیڑ پر ہاتھ رکھے اور وہیں دوہرا ہو گیا۔ پھر ایک آدمی نے اوپر سے اس کی پیٹھ میں چاقو مارا اور میرے دوسرے آدمی مرزے کو کوبے کو نیچے گرا کر ان کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میرے آدمیوں نے مرزے یا کوبے کو پکڑ کر زور سے ایوبے کے ساتھ ٹکرایا تھا، اور یہ سکیم کی ایک کڑی تھی۔ انہوں نے اپنا کام صحیح طریقے سے کر لیا تو ایوب الگ گر پڑا تھا اور اس کے دونوں ساتھیوں کو میرے آدمیوں نے باندھ دیا تھا۔ 4 آدمی وہیں رہے اور 2 آدمی تھانے کی طرف چلے گئے۔ وہاں سے تھانہ 2-2.5 میل دور تھا۔ ان کے جانے اور آنے میں خاصا وقت لگتا تھا۔ جو 4 آدمی پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے ایک میری طرف آیا اور گھاٹی چڑھ کر میرے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مجھے رپورٹ دی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سکیم کیا تھی۔ حمید اللہ اور نور اللہ نے یہ سکیم اس طرح بنائی تھی کہ ایوب کو اس جال میں لایا جائے کہ میں اس کی بہن اس کے حوالے کر دوں گا۔
उसके दोनों साथियों को ये झांसा देकर उन्होंने अय्यूब के साथ भेजा था कि वह मुझसे मुआफ़ी मांगेंगे और अय्यूब का साथ भी देंगे। किया ये जाएगा कि अय्यूब की बहन की बजाय 5-6 आदमी वहां से इस तरह गुजरेंगे जैसे रात के मुसाफिर हों और कहीं जा रहे हों। ये इन तीनों को दबोच लेंगे। ये तो जाहिर था कि इनके पास खंजर या चाकू जरूर होंगे जो इनसे छीन लिए जाएंगे। हमारे आदमियों ने लाठियों और कुल्हाड़ियों से मसला होना था। चाकू और खंजर कुल्हाड़ियों और लाठियों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे एक आदमी ने अय्यूब के साथियों के चाकुओं से अय्यूब का पेट चाक करना था और उसके एक साथी को उसके साथ इसलिए टकराया गया था कि अय्यूब का खून उस आदमी के कपड़ों के साथ लग जाए। 2 आदमी थाने को चले गए थे और उन्होंने थानेदार सब इंस्पेक्टर राजा शेर खान को ये रिपोर्ट देनी थी कि वो 6 आदमी उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि 2 आदमियों ने एक आदमी को पकड़ा हुआ है और ये 6 आदमी आगे बढ़े कि देखें क्या मामला है। इतने में इन दोनों में से एक ने तीसरे आदमी को पीछे से पकड़ा और दूसरे ने उसके पेट में चाकू मारा। वो पेट पर हाथ रखकर दोहरा हुआ तो उसे चाकू मारने वाले ने उसकी पीठ में चाकू मारा। इतने में इन 6 आदमियों ने उन 2 आदमियों को पकड़कर उन्हीं की पगड़ियों से बांध दिया और 2 आदमी थाने चले गए। मैं चूंकि पुलिस के कायदे कानून से वाकिफ था, इसलिए मैंने अपने 6 आदमियों को कुछ बातें समझा दी थी। मसलन जो चाकू उन्होंने इस्तेमाल करना था उसके मुतल्लिक मैंने उन्हें बताया था कि वह वहीं फेंक दें और उसके दस्ते पर पांव रगड़ दें ताकि उनकी उंगलियों के निशान मिट जाएं और ये भी ज़ाहिर हो कि आला कत्ल जाए वकुआ पर पड़ा पाया गया। ऐसी और भी कई बातें थी जिनका ख्याल रखना था, लेकिन जिस शख्स ने ये सारा ड्रामा कोर्ट में हकीकी कत्ल साबित करना था उसे पहले ही तजम्मुल और मुनव्वर ने हाथ में ले लिया था। वो शख्स सब इंस्पेक्टर राजा शेर खान था। वो तो पहले ही उस जागीर का खादम था। मैं आपको बता चुका हूँ कि इस खिदमत का मुआवजा उसे क्या मिलता था। दिन के वक्त तजम्मुल और मुनव्वर उसके साथ मामला तय करके आए थे। मैं जानता था कि वह थाने में या अपने घर में हमारे 2 आदमियों का इंतजार कर रहा होगा। राजा शेर खान के लिए यह कत्ल साबित करना आसान था। उसने शहादत में मिर्जे और कूबे की हिस्ट्री, जिसमें पहली सजाएं शामिल थी, पेश कर देनी थी। ये सबूत तो उसके थाने के रिकॉर्ड में और सेशन कोर्ट में मौजूद था कि ये तीनों एक केस में पकड़े गए थे, लेकिन सबूत नामुकम्मल होने की वजह से बरी हो गए थे। उनका दोस्ताना साबित करना भी मुश्किल नहीं था। अय्यूब तो पहले ही पुलिस से निकाला हुआ सजा याफ्ता आदमी था। मैं वहीं बैठ गया। मैंने अपने आप को किसी के सामने नहीं करना था, मुझे सिर्फ पुलिस का इंतजार था। पुलिस में इतनी जल्दी तो नहीं आ सकती थी, लेकिन राजा शेर खान पहले ही तैयार था, इसलिए वो अपने अमले के साथ मेरी तवक्का के खिलाफ जल्दी पहुंच गया। मैं इतनी देर ऊपर ही बैठा रहा। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची तो मैं वहां से पीछे हटा और वापस चल पड़ा। गांव से 2-3 फरलांग दूर तजम्मुल और मुनव्वर खड़े मिल गए। वो मेरे लिए परेशान हो रहे थे और वो ये सुनने के लिए भी बेताब थे कि इस खूनी खेल का अंजाम क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि जहां तक मेरे काम का ताल्लुक था वो सब ठीक हो गया। सब इंस्पेक्टर राजा शेर खान को पक्का किए रखना इन दोनों भाइयों का काम था। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि राजा शेर खान पूरी तरह इन भाइयों की मुट्ठी में था, लेकिन उसे यकीन दिला दिया गया था कि सिकंदर यहाँ नहीं। तजम्मुल और मुनव्वर मेरे साथ उस मकान तक आए जहाँ मैं रहता था। उनका ख्याल था कि वो सुबह थाने जाएंगे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि वो थाने से दूर रहें। अगर जाना ही है तो रात को थानेदार के घर चले जाएं। वो मुझे मेरे ठिकाने पर छोड़कर आगे निकल गए। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सायरा दरवाजे के साथ लगी खड़ी है। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और अंदर ले गई। दिया जल रहा था। सायरा ने मेरा मुंह और सर पर हाथ फेरे और यूं मुझे हाथों से दबाने लगी, जैसे यकीन करना चाहती हो कि मैं जिंदा हूं। वो बहुत ही घबराई हुई थी। क्यों सायरा? मैंने पूछा। क्या हो रहा है तुम्हें? अकेले डर रही थी। क्या हो गया है सिकंदर? उसने कांपती हुई सी आवाज में कहा। मैं तो सोई ही नहीं,
आंख लगी तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में छुरी मार दी हो। शायद मेरी चीख निकल गई हो। मैं हड़बड़ा कर उठी, पलंग से उठ खड़ी हुई और दोनों हाथ अपने पेट पर रखकर दोहरी हो गई। फौरन ही जहन बेदार हो गया तो ख्याल आया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये तसल्ली फौरन ही खत्म हो गई और दिल इतना घबराने लगा कि यहाँ से निकल भागने को जी चाहता था। अगर मुझे मालूम होता कि तुम कहाँ हो तो मैं वहाँ पहुँच जाती। मेरे साथ रहना है तो ये डर और ये खौफ जहन से निकाल दो, मैंने कहा। मेरी जिंदगी वहम नहीं, ये बड़ी खतरनाक हकीकत है। नहीं सिकंदर, सायरा ने कहा, मैं डरने वाली नहीं। मेरी आंख खुली तो यही ख्याल जहन में आया कि तुम्हें कुछ हो गया है। छुरी जो मेरे पेट में लगी थी वो मेरे दिमाग में अटक गई। अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे। मुझे यह ख्याल आता था कि किसी ने तुम्हें छुरी मार दी हो। कुछ हुआ जरूर था सिकंदर, मेरा दिल अब भी ठिकाने नहीं आया। मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं सही और सलामत उसके सामने खड़ा हूँ, लेकिन उसके पेट में जो छुरी लगी थी ये खून की कशिश थी। अयूब उसका भाई था। छुरी भाई को लगी तो ख्वाब में वो छुरी बहन के पेट में उतर गई। मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई, मेरे पांव उखड़ने लगे। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। दूसरे दिन मुझे खबर मिली कि मिर्ज़ा और कूबा कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़े गए हैं और अयूब की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। अब देखना यह था कि उन दोनों को सज़ा होती है या शहादत मशकूक या कमज़ोर होने की वजह से बरी हो जाते हैं। लेकिन असल ख़तरा यह था कि उन दोनों मुल्ज़मों ने अदालत में ये ज़रूर कहना था कि सिकंदर यहीं है। अयूब ने बताया होगा ये राजा शेर खान पर मुनहसर था कि वो इतने बड़े झूठ को किस तरह सच साबित करता है। बहरहाल बहुत बड़ा ख़तरा मेरे सर पर आ गया था। मैंने बड़े ही खौफनाक और बेहानक खतरों का मुकाबला किया था। मेरी तो ज़िंदगी ही मुसलसल खतरे में से गुजर रही थी, जैसे रेलगाड़ी एक ऐसी तारीक सुरंग में दाखिल हो गई हो जिसके मुतल्लक मालूम ही ना हो कि कहीं जाकर ख़त्म होगी भी या नहीं। लेकिन अब ख़तरा ऐसा आ गया था जिसके मुतल्लक मैं रोज़ बरोज़ परेशान होता जा रहा था। ये थी सायरा। ये तो मैं आपके सामने एतराफ़ कर चुका हूँ कि सायरा एक बड़ी ही हसीन आसेब की तरह मुझ पर तारी हो चुकी थी और मैं महसूस करने लगा था कि मेरी अकल भी उसके ताबे होती चली जा रही है। ये पहली लड़की थी जिसने मुझ पर ये तिलस्माती असर किया था और मैं साफ तौर पर महसूस करने लगा था कि सायरा मेरे साथ ना हुई तो मैं वैसे ही बच्चा बन जाऊंगा या वैसे बच्चे की मानद हो जाऊंगा जैसा बच्चा मैं उस वक़्त था जब मेरी माँ के मुर्दा जिस्म को लोग कफन में लपेट कर मेरे सामने दफन कर आए थे। जो खतरा मैं महसूस करने लगा था वो मेरी अपनी ज़ात से ही उठ रहा था। वो हर वक्त मेरे साथ होती और मेरे इतना करीब होकर भी वो समझती थी कि मुझसे बहुत दूर है। इसलिए वो मेरे इतना करीब आ जाती थी कि उसके सांसों की खुशबू मेरे वजूद में दाखिल होने लगती थी और मुझे ये एहसास दिलाती थी कि मैं जवान हूँ और मैं आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता नहीं हूँ। उसके साथ ही मेरे अंदर एक कशमकश शुरू हो जाती। कोई ताकत, कोई ख्याल मेरे ज़ात से उठता था और मुझे सायरा से दूर हट जाने पर मजबूर करता था। उस खतरे को तसव्वुर में लाएं कि ऐसा कई बार हुआ कि मैं गहरी नींद सोया हुआ हूँ और अपने माथे, सर और गालों पर कोई बड़ी नरम और मुलायम चीज़ रेंगती महसूस की और मैं जाग उठा। देखा सायरा मेरे पलंग पर मेरे पास बैठी हुई है। वो बोलती बहुत कम थी। मैं कुछ कहता था तो उसकी आंखों में प्यार की चमक आ जाती थी या आंसू आ जाते थे। यूं भी हुआ कि मैंने शिद्दत से महसूस किया कि मुझे उस कमरे से भाग जाना चाहिए। उसके साथ ही एक एहसास मेरी ज़ात से उभरता था जो मुझे शर्मसार करता था। ये खामोश सी एक लान तान होती थी, जैसे मैं अपने जहन में गुनाह के ख्यालों की परवरिश कर रहा हूँ। उस रात को मैं नहीं भूलूंगा जिस रात उस कमरे का छोटा सा दरीचा खुला हुआ था और चांद उफक से ऊपर उठ आया था। जब चांद दरीचे के सामने आया तो उसकी शफाफ चांदनी सोई हुई सायरा के चेहरे पर पड़ने लगी। बाहर की किसी आवाज़ से मेरी आंख खुल गई।
शायद गीडरों के पीछे रखवाली वाले कुत्ते दौड़े और भौंके थे। मैंने सर घुमाकर सायरा की तरफ देखा। चांदनी में उसका चेहरा बड़ा साफ नजर आया। उसकी आंखें बंद थीं और मुंह मेरी तरफ था। मैंने ऐसा इरादा किया तो नहीं था, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता करवट बदलकर उठ बैठा। फिर पलंग से उठा। पलंग की हल्की हल्की आवाज़ों से सायरा की आंख खुल गई। मैं उसकी चारपाई के करीब जा खड़ा हुआ। क्यों सिकंदर? सायरा ने हल्के से तबस्सुम से पूछा। मैं कुछ बोल नहीं लगा था कि ऐसा धचका लगा, जैसे सामने से किसी ऐसी चीज ने मुझे धक्का दिया हो जो नजर नहीं आती। मैं हैरत से सायरा के चेहरे को टिकटिकी बांध कर देखने लगा। मेरे मुंह से ये लफ्ज निकल चला था, अम्मी। मैंने पहली बार देखा कि सायरा की पेशानी और उसकी आंखें और उसके होंठ बिल्कुल मेरी अम्मी जैसे थे। मुझ पर नींद का खमार तारी था। आप यूं कह लें कि मेरे शऊर पर गनूदगी तारी थी और लाशऊर पूरी तरह बेदार था। सायरा का पूरा चेहरा मुझे इस तरह अपने अम्मी जैसा नजर आया, जैसे ये सायरा नहीं मेरी अम्मी हो। हुस्न जमाल के मामले में हर मर्द और हर औरत की अपनी अपनी पसंद होती है, और जिसे मोहब्बत कहते हैं वो किसी ऐसी वजह से होती है जो ज़हने लाशऊर में कहीं छुपी हुई रहती है। मैं उस रात समझा कि सायरा मेरे जहन और दिल पर क्यों हावी हो गई है। सायरा उठ बैठी। क्या सोच रहे हो सिकंदर? सायरा ने कहा और दुपट्टा अपने सर पर ले लिया और बोली, बैठ जाओ मेरे पास। मैं उसके पास बैठ गया। मेरा एक हाथ अपने आप आगे बढ़ा और दूसरे लम्हे सायरा का आंचल मेरे हाथ ने मेरे होंठों से लगा दिया। मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं बना सकूंगा सायरा, मैंने ऐसे कहा जैसे मैं सिसक रहा हूं। क्या हो गया है तुम्हें? सायरा ने बड़े प्यार से पूछा। कोई ख्वाब देखा है? हम दोनों ख्वाब देखते ही इस दुनिया से उठ जाएंगे, मैंने कहा। हम भटके हुए मुसाफिर हैं और हम दोनों की राहें धुंधली धुंधली हैं, मालूम नहीं कहाँ इस धुंध में एक दूसरे से बिछड़ जाएं या इकट्ठे ही इस धुंध में छुपी हुई खाई में जा गिरें। कहते रहो जो कहना है, सायरा ने जज्बाती लहजे में कहा। बीवी ना बनाओ तो भी रहूंगी तुम्हारे साथ ही, ख्वाब देखते जिंदगी गुजार जाऊंगी। फिर ऐसे हुआ जैसे मेरी जुबान गंग हो गई और मेरी नजरें सायरा के चेहरे का तवाफ करने लगीं। मैं जो महसूस कर रहा था वो मैं नहीं कह सकता था। शायद समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ। मेरे साथ रहो सायरा, मैंने लरजती हुई सरगोशी में कहा। मैं तुम्हारी पूजा किया करूँगा और तुम्हें इतना करीब होते हुए भी इस तरह देखा करूँगा जैसे तुम मुझसे बहुत दूर हो। फिर ऐसे हुआ कि चांद दरीचे से झांकता हुआ आगे निकल गया। मैं आहिस्ता से उठा और अपने पलंग पर लेट गया। सायरा जवान थी। उस जवानी की नींद ने मुझसे बेखबर कर दिया। गुनाह करने की जुर्रत चाहिए, लेकिन गुनाह ना करने के लिए इतनी ज्यादा जुर्रत की जरूरत होती है कि तमाम तर ज़हनी और रूहानी कुव्वतों को अपने आप पर मरकूज करना पड़ता है। ये तो एक खतरा था और इसके साथ एक खतरा और पैदा हो गया था। उसका भी ताल्लुक सायरा के साथ था। उसने उस रात ख्वाब देखा था कि उसके पेट में किसने छुरी घोंप दी है और वो डर कर जाग उठी थी और उसने मुझे अपना ख्वाब सुनाया था। ये तकरीबन वही वक्त था जब उस गांव से कुछ दूर सायरा के भाई अयूब के पेट में कातल की छुरी उतरी थी। बहन अपनी जुबान से अपने भाई के खिलाफ नफरत का इजहार कर सकती है, लेकिन उसकी रूह भाई की मोहब्बत से सरशार होती है। मैं पहले बता चुका हूँ कि यह खून का असर था कि छुरी भाई को लगी और ख्वाब में वही छुरी बहन के पेट में उतर गई और वो हड़बड़ाकर जाग उठी। मैं जब वापस आया तो वो मेरी बलाएं लेने लगी थी जैसे मुझे कुछ हो गया हो। मैंने उसे बहुत तसल्लियां दी थी और कहा था कि ख्वाबों से नहीं डरना चाहिए। मुझे सही सलामत देखकर उसे कुछ चैन तो आ गया था, लेकिन सुबह उठते ही उसने पहली बात यही कही थी कि उसके दिल पर घबराहट है और वो ऐसे महसूस कर रही है जैसे कुछ हो गया है या कुछ होगा। मैंने फिर उसे समझाया कि ये उस तन्हाई का असर है और ये तन्हाई कैद की मानद है। कैद का जहन पर यही असर होता है, लेकिन सायरा की जहनी हालत और दिल की घबराहट
कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। इस कैफियत में वो मेरा सहारा लेती थी और मैं था उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था, और मेरे लिए एक और मुश्किल पैदा हो गई थी। मेरा दिमाग इस मसले में उलझा हुआ था कि सब इंस्पेक्टर राजा शेर खान उन दो मुलजमों कूबे और मिर्जे को किस तरह अयूब के कातिल साबित करेगा। ये दोनों कोई आम किस्म के देहाती नहीं थे कि कानून शहादत को ना समझते हों। ये तो पेशावर डकैत थे। जुर्म और जेल उनका खेल था। थानेदारों को उंगलियों पर नचाना उनका फन था, और वो कानून शहादत से अच्छी तरह वाकिफ थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो उस जुर्म का इकबाल कर लेंगे जो उनके सामने किसी और ने किया है। बड़ी मजबूत शहादत की ज़रूरत थी। मुझे पूरी उम्मीद नहीं थी कि राजा शेर खान ऐसी शहादत इकट्ठी कर लेगा। मैं पुलिस के सब इंस्पेक्टर की हैसियत से यह सोचने लगा कि शहादत क्या हो और किस तरह हासिल की जाए। हमारे जिन आदमियों को राजा शेर खान ने अदालत में ऐनी शाहिदों की हैसियत से पेश करना था, वो एक की बजाय 6 आदमियों को कत्ल कर सकते थे, लेकिन अदालत में वह सफाई के वकीलों की जिरह का मुकाबला करने की काबिलियत नहीं रखते थे। और वही हुआ जिसका डर था। खतरा सावन की स्याह काली घटा की तरह चढ़ आया। उस वारदात के बाद तीसरा या चौथा दिन था कि रात को तजम्मुल और मुनव्वर मेरे पास आए। सायरा को दूसरे कमरे में भेज दिया। दोनों घबराए घबराए से लग रहे थे। मालूम होता है अच्छी खबर नहीं लाए, मैंने कहा। हाँ भाई, तजम्मुल ने कहा। खबर अच्छी नहीं, राजा शेर खान आया था, अभी अभी गया है। सब इंस्पेक्टर राजा शेर खान शाम के बाद चोरी छुपे उन दोनों भाइयों के पास आया था, और उन्हें जो नई सूरत हाल बता गया था वो उन्होंने मुझे सुनाई। ये मैं आपको अपने अल्फाज में सुनाता हूँ। कूबे और मिर्जा को पकड़कर थाने ले गए तो रात को शेर खान ने हमारे आदमियों के बयान लिए। उन्हें उसने ऐनी शहादत लिखा था, और उनमें से उन 2 आदमियों को रिपोर्ट कुंदा बनाया था जो थाने इतला देने गए थे कि फलां जगह 2 आदमियों ने एक आदमी को कत्ल कर दिया है। ये ड्रामा तो घड़ा हुआ था। शेर खान दरअसल उन्हें बिठाकर ये समझा और पढ़ा रहा था कि वह अदालत में अपने बयान इस तरह दें। उनसे वह बयान सुनता भी रहा, उनकी गलतियां दुरुस्त करता रहा और रहस्य सहल कराता रहा। ये आदमी सुबह के वक्त थाने से वापस आए थे, और उन्होंने तजम्मुल और मुनव्वर को पूरी रिपोर्ट दी थी कि रात थाने में क्या हुआ। ये लोग तो थाने से आ गए, और थाने में शेर खान ने बारी बारी कूबे और मिर्जा को अपने पास बिठाया और उन्हें कहा कि बेहतर है वो अकबाली बयान दे दें। दोनों उस्ताद जुराम पेशा थे। उन्होंने कोई फरियाद ना की, बल्कि राजा शेर खान को चैलेंज किया कि वो उनके खिलाफ जुर्म साबित करके देखे। तुम जैसे बहुत थानेदार देखे हैं राजे, कूबे ने कहा। हम हमेशा आपकी हवालात में नहीं रहेंगे राजा साहब, मिर्जे ने उसे कहा। 2-4 दिनों बाद हमें जेल की हवालात में भेज दिया जाएगा। चंद दिनों बाद ही आप सुनेंगे कि कूबा और मिर्जा नाम के 2 हवालाती जेल से फरार हो गए हैं। फिर अखबारों में खबर छपेगी कि राजा शेर खान नाम का एक सब इंस्पेक्टर और उसका पूरा खानदान कत्ल हो गया है। होश में आओ राजा साहब, अगर तुम अकबाली बयान नहीं दोगे तो क्या तुम बरी हो जाओगे? शेर खान ने दोनों से कहा था। अदालत में देखना कि तुम्हारे खिलाफ कैसी कैसी शहादत आती है। मैं ये कह रहा हूं कि अकबाली बयान दे दोगे तो फांसी से बचा लूंगा, और मुकदमा ऐसा बनाऊंगा कि तुम्हें सेशन कोर्ट से उम्र कैद मिलेगी, और अपील में तुम शक के फायदे से बरी हो जाओगे। वो सारा दिन शेर खान और उन दोनों मुलजमों में हमेशा यही बहसो मबासा चलता रहा। एक सौदा कर लो, शेर खान ने उन्हें कहा। मैं जो बयान बताता हूँ वो मजिस्ट्रेट को देकर अंगूठा लगा दो तो मैं शहादत इतनी कमज़ोर रखूँगा कि तुम सेशन कोर्ट से ही बरी हो जाओगे। थानेदार साहब, उनमें से एक ने कहा, चौधरियों का ड्रामा खेलने के लिए कोई और आदमी पकड़े थे जो कुछ भी जानने और समझने वाले ना होते। हमारे साथ तुम नहीं खेल सकते। सब इंस्पेक्टर राजा शेर खान का मतलब ये था कि उन दोनों को सजा ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। असल मकसद अयूब को साफ करना था, वो हो गया था। और दूसरा मकसद ये भी था कि इल्ज़ाम तजम्मुल और मुनव्वर की तरफ ना आए। हमने असल मकसद तो ये पूरा करना था, लेकिन मैंने आपको बताया है कि कूबा और मिर्ज़ा बड़े तजर्बेकार खिलाड़ी हैं।
राजा शेर खान ने दोनों को फिर हवालात में बंद कर दिया और उन्हें कहा कि वो सोच लें। शेर खान का इरादा यह भी था कि उन्हें ऐज़ा रसानी के जरिए अपनी बात पर ले आएगा, लेकिन उन दोनों के लिए बड़ी सख्त ऐज़ा रसानी की ज़रूरत थी, क्योंकि ये दोनों उसका भी इतना तजर्बा रखते थे कि उनके जिस्म पत्थर हो गए थे। रात को शेर खान ने उन्हें जगाए रखा, उन्हें 2 हेड कांस्टेबलों के हवाले करके परेशान भी किया, लेकिन ये दोनों जहां थे वहीं रहे।